भी हमारा इतना नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आज हमारे पास काम है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। ये जो है लोग बगैर बताए हमारे को यहाँ से चले गए। गैस की शॉर्टेज की वजह से हमारे धारावी में बहुत सारी होटल आज भी बंद है। ऑर्डर मैंने लिया था 5,000 10,000 में, अभी वो मुझे 2,000 1000 1,500 में उसका कस्टमर कब मिलेगा तब मैं बेचूंगा। 2 महीने, अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया मेरा काम बंद हो गया और आगे भी बंद रहेगा। Since the past few days, we have been witnessing a high intense war between countries like Iran, Israel, and in which the USA has also put in its feet. But now, the same war has putting its effects straight in Mumbai, Maharashtra, and the entire Indian region. Today, I am in Dharavi, one of the most biggest slums, not in Mumbai, not in the country, but entire Asia. But we are here today to explore horrors what people working here since decades are experiencing. Now, I am here at a leather jacket unit which has been working in Dharavi since a long period of time. Let's first explore what is happening over here. So, this is a leather jacket unit, and as you can see, there is complete shutdown of this leather jacket unit. There are no people working here, there are no workers, and the entire work has been completely stopped. As you can see, empty tables, empty machines, and all the leather jacket products completely kept over here without any use. Also, we will talk to the owner of this place and we will understand what is happening exactly, because in Dharavi, people are living since decades and more than 10 lakh people reside over here. And Dharavi itself is a complete economy. People work over here, products completely imported go out of the nation, and then our economy is built. But now, since the war has taken place, there are no people to work over here. Immigrant workers who come here in Mumbai and work for their companies, and units like this are nowhere to be seen. Let's understand what is happening, because this is Mumbai Matters. Before we move ahead, let me tell you one thing which is very important, and I want every one of you to know. As you can see, there are these leather jackets kept over here. So you might ask, what is special in it? So let me tell you, all the leather jackets which are produced in Dharavi are then imported to big companies, are then sent out of the country, and big companies white label these products and then sell it. But now, due to the war and the ongoing geopolitical tension, the entire work in Dharavi has completely stopped. And now people, unit owners are looking out ways for survival, because there is no business, there is no money, there is no rollout. So we are at one such leather jacket unit over here. I also have the owner with us. Let's move ahead and talk to him and understand what is the complete situation going on in Dharavi, going on along with the geopolitical tensions. So I have with me the owner of this entire unit. Let's try and understand what are his pains and what is the complete situation in Dharavi. खुर्शीद भाई, सबसे पहले लोकमत टाइम्स पर आपका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आपका वक्त दिया। बट अब जिस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, देखकर समझ रहा है कि यहाँ पर वर्कर्स की कमी है। क्यों हुई ये वर्कर की कमी, कब से ये वर्कर्स यहाँ से जा चुके हैं और उस पर आप पे क्या असर पड़ रहा है? ये जो अभी वार चालू हुआ ईरान और अमेरिका इसराइल का, तो तभी से क्या हुआ कि टूरिस्ट का आना जो है मुंबई बंद हो गया। टूरिस्ट कम होने लगे धीरे धीरे और काम भी कम होने लगा। लेकिन काम चल रहा था और काम आगे चलता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम, अभी कंपनियों का काम चलता है। लेकिन जैसे ही ये वॉर बढ़ा, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ बाटला मिलना बंद हो गया, गैस बाटला, लोगों को बहुत सारी तकलीफ होने लगी। तो हमारे कारीगर क्योंकि सभी बाहर से है, और उसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ, जैसे ही एक अफवाह उड़ा कि हो सकता है लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन की डर की वजह से, क्योंकि पहले लोग एक बार लॉकडाउन मुंबई में झेल चुके हैं कि यहाँ से जाने के लिए गाड़ी नहीं, लोग पैदल यहाँ से सफ़र किए। उसी डर की वजह से हमारे सारी कारीगर जो है पैसा लेकर बगैर बताए मुझे, मेरे पास 6 कारीगर थे, हमारा मास्टर था, एक हेल्पर था, 7-8 लोगों का एक यूनिट है। पहले हमारे पास 20 कारीगर होते थे। धीरे-धीरे पहले से ही लेदर गारमेंट पे बहुत सारी मार थी। उसके मार की वजह से ऐसे ही काम कम था उसमें जो चल रहा था, उसमें इस वार की वजह से फिर बाटले का मिलना बंद हो गया। उसकी वजह से ये जो है लोग बगैर बताए हमारे को यहाँ से चले गए। आज हमारे पास काम है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। अभी आज 1 महीने से गाला बंद है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर ये वॉर बंद होगा और लोग फिर से हर चीज़ नॉर्मल होगी, तो फिर इसको चालू करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो बंद है, अभी हमारा इतना नुकसान है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
तो ऐसे हालात है अभी। तो जिस वक़्त आपके कारीगर मुंबई से निकलने की कोशिश उनकी जारी थी, तो क्या उन्होंने आपसे कुछ बात करने की कोशिश करी या फिर उन्होंने आपसे वो बात करी कि हम यहाँ से निकल रहे हैं? नहीं, पहले उन्होंने बात करी लेकिन तब उनको हमने समझाया कि वार जहाँ पे है वहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ हमारे देश में सब शांति है, यहाँ नॉर्मल रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम आपका सारा इंतज़ाम करेंगे। लेकिन क्योंकि बाद में वो लोग ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है और ज़रूरत तो उनको भी थी, लेकिन वो लोग क्योंकि पहला ऐसा हो चुका है, सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा, वो अगर ये लॉकडाउन का अफ़वाह नहीं उड़ता, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग उस डर से सब लोग यहाँ से बगैर बताए चले गए। तो क्या मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि वो स एक अफ़वाह की वज़ह से लोग यहाँ से निकल गए, बट अब जब चीज़ें थोड़ी-सी शीतल होने लगी है, उन लोगों का मुंबई में वापस आना क्या आपको लगता है जल्दी से वो हो जाएगा या फिर उसमें और वक़्त लगेगा? ना इसमें काफ़ी समय लगेगा अब, क्योंकि अब उनको जब वो विश्वास होगा, मैं भी बोलूँगा, फिर वो लोग भी पता करते हैं कि बाकी बिस्सी चालू हो गई, क्योंकि खाना सबका अंदर गलियों यहाँ धारावी में कैसा है, अलग गली-गली में बीसी चलती है, बीसी वालों को बाटला नहीं मिल रहा है, उनको जब बाटला मिलने लगेगा, बिस्सी चालू हो जाएगी, तब वो लोग फिर आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन खुर्शीद भाई एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सरकार तो ये कह रही है कि गैस का शॉर्टेज तो है नहीं, फिर आप जब धारावी में रह रहे हो, आप बहुत सालों से यहाँ पर रहकर काम कर रहे हो, तो क्या सही में गैस की शॉर्टेज नहीं है या फिर गैस की शॉर्टेज बिल्कुल है? क्या कहोगे आप? गैस की शॉर्टेज की वजह से हमारे धारावी में बहुत सारी होटल आज भी बंद है। 90% जो बिस्सी थी वो बंद है। रोड पे जो लोग इडली डोसा बनाते थे, वड़ा पाव बनाते थे, कबाब पाव बनाते थे, वो सब बंद है। उसकी वजह है गैस बाटला, क्योंकि बहुत सारी जब रेगुलर टाइम में धारावी में ऐसा भी होता था कि बहुत सारे लोग कमर्शियल बाटला नहीं भी रहता था तो रेसिडेंस बाटले से अपना काम चलाते थे। तब उस पर कोई पाबंदी नहीं होती थी, चार्जेस वगैरह होते रहते थे। लेकिन क्योंकि अभी कमर्शियल बाटला बंद है, इसकी वजह से रेसिडेंस बाटले का एकदम से नामुमकिन है कि वो लोग इस्तेमाल कर पाए, तो इसीलिए वो टोटल बंद है। तो उस बंद होने की वजह से लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए नॉर्मल नहीं हो रहा है लोग। जब तक ये सबसे बड़ा जो मामला है, वो गैस का है। अगर सरकार जितना जल्दी इस गैस बाटले का मामले को हल करेगी, उतना जल्दी धारावी जैसे जगहों पे लोगों का फिर से कारोबार चालू होगा। और जब मैं आपके इस यूनिट में घूम रहा था, मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे रॉ मटेरियल जिसे कच्चा माल कहते हैं, वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। फर्निश्ड वो जो कंप्लीट मटेरियल है, वो भी रेडी है। इन सब वजह से कितना नुकसान आपका हुआ है और इस नुकसान से बाहर आने के लिए और कितना वक़्त आपको अभी लगेगा? बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अधूरी है। जब कारीगर जाने लगे, तो उन्होंने अधूरा छोड़ के चला गया। अब वो अधूरा ना मैं बेच पा रहा हूँ, ना जिस पार्टी से लेके आके काम कर रहा हूँ, उनको दे पा रहा हूँ। तो उसका पूरा-पूरा नुकसान मेरा है। अभी जैसे बहुत सारा चीज़ मेरा ऑनलाइन ऑर्डर था। मैं किसी पार्टी के लिए ऑनलाइन काम करता हूँ। अभी उनका एक टाइम होता है कि वो 3 दिन के अंदर डिलीवरी करना है आपको। लेकिन अभी कारीगर निकल गए, अब वो सब मेरा नुकसान है। अब वो मटेरियल मेरा हो गया। वो ऑर्डर मैंने लिया था 5,000 10,000 में। अभी वो मुझे 2000 1000 1500 में उसका कस्टमर कब मिलेगा तब मैं बेचूँगा, ऐसा हो गया। तो अभी क्या आपकी कोई कोशिश जारी है आपके कारीगरों से बात करके कि उन्हें फिर एक बार मुंबई लाया जाए? क्योंकि जब एक बार एक कारीगर मुंबई छोड़कर अपने गाँव चला गया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह के डर से, अब उनसे क्या आपकी बात हुई है? उनसे फिर एक बार यहाँ पर लाने की कोई कोशिश आपसे हुई है? डेली मेरी बातचीत हो रही, कारीगर को मैं समझा रहा हूँ कि आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, आपका सारा इंतज़ाम मैं करूँगा। आपके खाने का इंतज़ाम करूँगा, आपके गैस के बाटले का इंतज़ाम करूँगा। फिर भी अभी वो आने के बारे में सोच रहे, डर रहे, मुझसे आश्वासन तो दे रहे कि मैं आऊँगा। लेकिन अब वो कब तक आ जाएँगे, ये अभी एकदम मुमकिन नहीं है। अब अगर आज जैसे मेरे सुनने में आया है कि वॉर में आज से कुछ सीज़फायर हुआ है, अगर ये सीज़फायर हुआ तो उनको भी ये खबर जाएगी, क्योंकि हर आदमी न्यूज़ देखता है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि धारावी एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक इकोनॉमी है। यहाँ से बहुत सारा बिज़नेस जनरेट होता है। आपको बहुत सारी मालूमात इस परिसर की भी है। तो अगर मैं बात करूँ कि रुपयों के मामले में कितने रुपयों का नुकसान एक यूनिट का ओनर को हो रहा है आज की तारीख में इस बंद की वजह से? अगर आप मान लीजिए कि मुझे 2 महीने, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरा काम बंद होके और आगे भी बंद रहेगा, तो मेरे इस जगह का भाड़ा 20 से 25,000 रुपया है। तो मेरा तो छोटा यूनिट है, तो आप समझ लो किसी का 10,000 भी है और उसके सारे वर्कर चले गए और वो आगे भी 1-2 महीना बंद रहेगा, तो हज़ारों की तादाद में धारावी में ऐसे कारखाने हैं, जिनका भाड़ा लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख रुपया महीने का भाड़ा पे करते हैं। तो आप सोचिए अगर 2-3 महीने में एक आदमी अगर 2-3 लाख का नुकसान झेल रहा है, तो अगर वो हज़ारों की तादाद में है, तो धारावी का नुकसान कितना बड़ा होने वाला है,
ये आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आम आदमी, हमारे जैसा छोटा आदमी अगर जो है लाख रुपए का नुकसान बर्दाश्त करेगा, तो जो बड़ी यूनिट वाले हैं, जिनके यहाँ 100 आदमी, 50 आदमी का यूनिट भी धारावी में है, तो आप सोचिए कि उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो अब अरबों में नुकसान धारावी का होने वाला है। अगर अरबों में धारावी का नुकसान हो रहा है, तो उस पे जो हम टैक्स पे करते हैं धारावी से, सरकार का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है सर कि जब लेदर इंडस्ट्री जो धारावी मुंबई नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है धारावी, अब कहीं ना कहीं इस वॉर के रूमर्स के वजह से जो काम यहाँ पर ठप था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनी ओनर्स है वो कहीं ना कहीं धारावी के मैन्युफैक्चरर्स को ये काम ना देते हुए अब कहीं और मुड़ जाएंगी? इंडिया का जो भी काम है, ये अगर हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये सब चाइना जा रहा है और चाइना बराबर इसकी डिलीवरी भी दे रही, टाइम पे चाइना डिलीवरी दे रही। तो इसमें फ़ायदा चाइना का हो गया। ऑलरेडी हम लोग चाइना के उससे कॉम्पिटिशन करने में कहीं न कहीं फ़ेल हो रहे थे। कोई भी काम में चाइना का हम कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे थे और आज वो टोटल हमारा काम चाइना जा रहा है। तो अब चाइना तो और इसमें से हमारे को जो है और बेहतर काम कर लेगा। So, this is what the entire ground reality is. This was a leather jacket unit owner, and he completely says that there was a single rumor. People thought that the rumor was right, it was correct. And all the workers, the immigrant workers, left Mumbai and they are nowhere to be seen. And every loss has to be now covered by the leather jacket unit owners. So if this rumor was not correct, why did the immigrants leave? If the rumors was not correct, why people are still wanting gas cylinders but they are not getting it in a correct price? These are some questions we need answers for. And this was Mumbai Matters. Behind the camera lens, I have Aditya with me. You were watching Lokmat Times. Thank you.